So in this question, in the figure, one of the curves is for adiabatic process and one of the curve is for isothermal process. The most probable curve for adiabatic process is given by, हमें पता है adiabatic process का जो slope है, that is greater than the process of slope of the isothermal curve. So slope of adiabatic curve is greater than gamma times the slope of isothermal curve. So is greater than slope of isothermal curve. So that means CD represents adiabatic expansion and EF will represent isothermal expansion. So CD would be the answer for this. Next one is, during an adiabatic expansion of 2 moles of a gas, the change in internal energy. So adiabatic expansion है, so dq is equal to d is equal to 0. और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से dq इज इक्वल टू du प्लस dw है. dq अगर 0 हो गया, इसका मतलब dw इज माइनस ऑफ du, राइट? सो the change in internal energy was found to be equal to minus 100 joule. So dw is minus of du की जगह minus 100 करेंगे तो प्लस ऑफ 100 joule निकल के आ गया. So work done during the process by the gas will be plus of 100 joule. So option 2. Next example is 1 mole of an ideal gas at an initial temperature of T Kelvin. So 1 mole of an ideal gas, initial temperature of T Kelvin, does 6 joule of work adiabatically. Is the ratio of specific heat of this gas at constant pressure and constant volume. So Cp upon Cv is equal to 5/3. तो ये क्या होता है? गामा होता है. गामा is Cp by Cv which is equal to 5/3. We have to find the final temperature. Initial temperature T दिया हुआ है. Final temperature हम लोग को निकालना है. So temperature T है. Final temperature मान लो T dash है. Number of moles 1 है. N is equal to 1 है. And work done dW is equal to 6R joules. So ये adiabatic process है, work adiabatically निकालना है. तो adiabatic process के लिए तो पहले हमारा गामा is equal to 5/3 हो गया. Cv is equal to R by gamma minus 1 or which is equal to R by 5/3 minus 1. R divided 5 minus 3, 2/3, 3R by 2 हो गया. Cv का वैल्यू 3R by 2 हो गया. Now dq is equal to du plus dw है. dq तो 0 है adiabatic process में. 0 is equal to du plus dw. So this will be
dw is minus du माइनस ऑफ एन सी वी डी टी, डी यू का वैल्यू सी वी एन सी वी डी टी होता है. सो डी डब्ल्यू हम लोगों को पता है 6R दे रखा है क्वेश्चन में. 6R इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 इंटू सी वी मतलब 3R/2 इंटू डी टी. सो 3R ये 2 टाइम्स हो गया. dt is equal to minus 4. dt means final temperature T dash minus T is minus 4. T dash is equal to T minus of 4. Final temperature is T minus 4 Kelvin. Is it clear? Yes, sir. Next question है, an ideal gas having initial pressure P, volume V and temperature T is allowed to expand adiabatically. Initial pressure P है, volume V, temperature T है. उसके बाद यहाँ पे adiabatic expansion होता है. So allowed to expand adiabatically until its volume becomes 5.66 V. So volume 5.66 V हो गया. And temperature falls to T/2. Pressure कुछ P2 मान लो है यहाँ पे. How many degrees of freedom do the gas molecules have? So देखो हमारे पास volume, because ये adiabatic expansion है. So in adiabatic expansion, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर और वॉल्यूम का अगर हम लोग रिलेशन देखते हैं, सो ये T1 V1 गामा -1 इज T2 V2 गामा -1 हो गया. T1 इनिशियल टेम्परेचर ये जो है, दिस इज TV गामा -1 इज इक्वल टू T2 है हमारा T/2, वॉल्यूम है 5.66 V रेज टू द पावर गामा -1. टी और टी कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. 2 इज इक्वल टू 5.66 V बाय V रेज टू द पावर गामा -1. V और V कैंसिल हो गया. सो वील हैव 2 इज इक्वल टू 5.66 raised to the power gamma -1. Taking log on both sides, so we'll have log 2 to the base 10 is equal to gamma -1 log of 5.66 to the base 10. अब देखो गामा -1 is equal to log 2 to the base 10 by log 5.66 to the base 10. अब ये वैल्यूज निकालते हैं. ठीक है, log 2 है 0.3010 डिवाइडेड बाय log 5.66 है 0.75 0.7528. So this is approx 0.399 आता है, मतलब 0.4 हो गया. सो जो गामा का वैल्यू है -1 उधर जाएगा, 1 + 0.4 1.4 हो गया. सो गामा का वैल्यू 1.4 हो गया.
अब गामा का वैल्यू 1.4 हो गया। एक सेकंड। गामा का वैल्यू 1.4 हो गया और गामा इज इक्वल टू 1+2/f। सो 1.4 इज इक्वल टू 1+2/f। 1 को उधर लेके चले जाएंगे, 0.4 इज इक्वल टू 2f। f इज इक्वल टू 1+2/f, 1+2/f, sorry. So this is 2/f is 0.4. f is equal to 2 divided by 0.4, which is equal to 5. तो number of degrees of freedom 5 हो गया यहाँ पे। तो how many degrees of freedom ये जो निकालना था, ये तो इसका value 5 आ गया। Now obtain the work done by the gas during the expansion as a function of initial pressure and volume V. So initial pressure और volume V के terms में work done निकालना है। dW is equal to P1 V1 minus P2 V2 divided by gamma minus 1. So P1 V1 PV minus, अभी ये प्रेशर का रिलेशन हम लोग निकालेंगे। एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, यहाँ पे मैं इसमें यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो हम लोग को पता है कि P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब इसको हम लोग यूज करेंगे, प्रेशर यहाँ PV अपॉन T इज इक्वल टू P2 इंटू 5.66 V अपॉन T बाय 2। T और T कैंसिल हो गया, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो गया, 2P बाय 2। So P2 is equal to, so P2 is equal to P divided by 2 into 5.66। ये हमारा प्रेशर P2 हो गया। तो PV माइनस P2 की जगह P डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5.66, V2 के जगह 5.66 V डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। ठीक है, गामा माइनस 1 मतलब 1.4 माइनस 1। और हमें जो वर्क डन निकालना है पीवी के टर्म्स में ही निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये देखो 5.66 कैंसिल हो गया, पीवी माइनस पीवी बाई 2, पीवी बाई 2 हो जाएगा, 1.4 माइनस 1 0.4 हो जाएगा। सो दिस इज पीवी अपॉन 0.8 1.25 PV. This is the work done. Is it clear? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, during an experiment an ideal gas is found to obey an additional law, vp square is equal to constant. तो हमारे पास एक तो हो गया vp स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और दूसरा है कि ये pv इज इक्वल टू nRT, क्योंकि ये आइडियल गैस भी है। तो आइडियल गैस है और साथ में ये अलग से ये वाला इसको भी, इस रिलेशन को भी फॉलो कर रहा है। Now the gas is initially at temperature T and volume V. Initial temperature T or volume V. What will be the temperature of the gas T2? Volume जो है यहाँ पे 2V है. So temperature of the gas when it expands to a volume 2V. तो पहले Vp स्क्वायर जो कांस्टेंट है इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग के पास आ जाएगा Vp स्क्वायर is equal to constant तो इससे आ जाएगा V1 P1 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 P2 स्क्वायर, मतलब V इंटू P1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2V इंटू P2 स्क्वायर। V और V कैंसिल हो गया, P1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2P2 स्क्वायर, और P2 इज इक्वल टू, मतलब P1 इज इक्वल टू रूट 2P2 फर्स्ट। उसके अलावा PV इज इक्वल टू nRT है, तो जो रिलेशन होगा PV is equal to P is equal to nRT by V। तो इससे आ जाएगा P1 by P2 is equal to nRT1 by V1 nRT2 by V2। nR और nR कैंसिल हो गया, V2 by V1 into T1 by T2। ठीक है, अब हम लोग रिलेशन निकाल लेते। T2 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। P1 by P2 इससे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लें, P1 by P2 हमारा √2 हो जाएगा। √2 इज इक्वल टू V2 है 2V by V, T1T है by T2, V कैंसिल हो गया। इससे हमारा आ गया T2 इज इक्वल टू 2T by √2, that is √2T। So T2 is equal to √2T, option 2 हो गया।
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट है हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है? जो ये जनरल प्रोसेसेस हैं वो हम लोगों ने देख लिया कि आइसोबारिक प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। उसके अलावा अगर कोई प्रोसेस मतलब कोई जो गैसेस हैं उसके अलावा किसी और प्रोसेस को अगर फॉलो करता है, उस प्रोसेस को इन जनरल नाम दे दिया गया है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। सो द प्रोसेस विच इज नाइदर आइसोकोरिक नॉर आइसोबारिक, adiabatic, isothermal, but the pressure, volume and temperature changes, then that is known as polytropic process. The process equation of polytropic process is PV raised to the power A is equal to constant. अब हम लोग जैसे adiabatic process में PV raised to the power gamma is equal to constant कहते थे, यहाँ पे PV raised to the power A is equal to constant कह रहे हैं, है ना? जहां पे A ना तो गामा के बराबर है, ना 1 के बराबर है, ना 0। A अगर 0 के बराबर होता तो ये प्रेशर कांस्टेंट हो जाता, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाता। A 1 के बराबर हो जाता मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता तो आइसोथर्मल हो जाता, और A गामा के बराबर है तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाता। बट ये बिकॉज इन तीनों में से किसी भी चीज के बराबर नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, PV raised to the power A is equal to constant. Now, if a system undergoes changes from state A having pressure P1, V1, T1 to state B having pressure and volume P2, V2 and T2, तो यहाँ पे जैसे जो रिलेशन होगा इस प्रोसेस का, जो इक्वेशन, प्रोसेस का इक्वेशन अगर हम लोग बोले, so this is P1 V1 raised to the power A is equal to P2 V2 raised to the power A, which further gives, इससे हम लोग को पता है जैसे एडियाबेटिक में हम लोग टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो टीवी रेज टू द पावर A माइनस 1 इज कांस्टेंट। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में निकालेंगे P1 माइनस A इंटू टी रेज टू द पावर A इज अगेन अ कांस्टेंट, और डेंसिटी टेम्परेचर के बीच में और डेंसिटी प्रेशर के बीच में ये रिलेशन है। नाउ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, so the change in internal energy is given by mu2 minus mu1 is equal to mu CV T2 minus T1, ठीक है। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी को mu2 minus mu1 ने बेसिकली u2 minus u1 लिखेंगे, इज mu CV T2 minus T1, और mu R, CV को हम लोग रिप्लेस कर लेंगे R by gamma minus 1 से, mu R gamma minus 1 T2 minus T1 हो गया। So work done by the gas is given as PdV, where V1 से लेके V2 तक ये चेंज कर रहा है। So PdV, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P2 V2 minus P1 V1 divided by 1 minus A, और mu R into T2 minus T1 divided by 1 minus A. Now heat supplied dq का जो वैल्यू है, this is equal to du plus dw, right? So where q is equal to work done w plus du मतलब u2 minus u1 जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। सो mu r t2 minus t1 हो गया, है ना? यहाँ पे dw का वैल्यू mu r t2 minus t1 1 minus a है, ये हमारा वर्क डन हो गया, और ये हमारा change in internal energy हो गया mu CV T2 minus T1. This is the heat supplied. Now specific heat of a polytropic process, because Q का value mu CV T2 minus mu C into T2 minus T1 है, from 1 and 2 we get, इसको इसमें replace कर लिया 1 और ये 2, तो mu C T2 minus T1 को replace कर दिया प्लस mu R T2 minus T1 mu CV T2 minus T1, T2 minus T1 कैंसिल कर लिया, सभी में है, म्यू भी कैंसिल कर दिया। So this is C is equal to R by 1 minus A plus of CV. C is equal to CV minus R by A minus 1. दोनों में से कोई भी याद कर लोगे चल जाएगा। So this is the specific heat of a polytropic process. Bulk modulus polytropic process का PV raised to the power A constant है, बल्क मॉडुलस माइनस dp डिवाइडेड बाय dv है, विच इज इक्वल टू AP हो जाता है,
तो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू ए इंटू पी। तो याद हम लोग अगर करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वही चीज गामा इंटू पी हम लोग लिखते थे। ट्वेंटी थर्ड एग्जाम्पल है द मोलर हीट कैपेसिटी इन अ प्रोसेस ऑफ डायटमिक गैस। सो हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी दे रखा है ऑफ ए डायटमिक गैस if it does a work of q by 4, so dw is equal to q by 4. Heat energy supplied is q. du plus dw. So q is equal to du plus q by 4. du is equal to 3q by 4. फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके अलावा हमें पता है du is equal to cv dt, n cv dt, यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी बोल रहा है तो n is equal to 1 ले लेंगे। So du is equal to cv का वैल्यू बिकॉज डायटमिक गैस है 5/2 r होगा। ठीक है, into dt. So since for diatomic gas cv is equal to 5/2r, dt is equal to du is equal to 5/r dt। अब इसमें यहाँ पे इसको रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, जो मोलर हीट कैपेसिटी C is equal to dq by dt. So this is dq का वैल्यू q है, dt का जो वैल्यू है यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि भाई dt is equal to 2/5r into du. So इसको रिप्लेस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा dt के जगह 2/5r into du, du के जगह q डिवाइडेड बाई 2/5r, du है हमारा 3q/4, 3q/4। तो 2 2 जा q और q कैंसिल हो गया, 10r/3। So C is equal to 10r/3. लिख लिया आपने?
Yes, sir. Now cyclic processes. So in cyclic process, final state of the gas is equal to initial state of the gas. तो cyclic process में initial और final state same होता है, वापस वहीं पे पहुंच जाए जहां से start किए थे, ऐसे process को हम लोग cyclic process कहते हैं. So in cyclic process, final state of gas is equal to initial state of gas, right? So final state है हमारा final pressure, final volume और final temperature is same as initial pressure, initial volume and initial temperature. For one complete cycle in cyclic process, तो अगर cyclic process होगा तो because ये internal energy state function है, तो change in internal energy zero हो जाएगा अगर हम लोग वापस उसी position पे आ जाएंगे. Work done by the gas is equal to area enclosed by the curve on PV curve. PV curve के अंदर जो enclosed area होता है that gives you the work done. उसके बाद है from first law we know that dq is equal to du plus dw, but du तो zero हो गया, change in internal energy. So जो हमारा dq का value है this is equal to dw. So from first law dq is equal to dw. Net heat process is equal to q cyclic. So जो भी heat हम लोग दे रहे हैं cyclic process में that is converted into work done in a cyclic process. Now general results for different processes. So for same volume expansion, work done by the gas is maximum in isobaric process and least in adiabatic process. That is isothermal process is in between both of them. आप ये देखो, ये वॉल्यूम V1 है और ये वॉल्यूम V2 है. V1 से V2 तक एक्सपेंड कर रहे हैं. पीवी डायग्राम आइसोबारिक प्रोसेस का पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस हो गया, ठीक है. और आइसोथर्मल का स्लोप कम होगा, एडियाबैटिक का जो स्लोप है वो सबसे ज्यादा होगा. तो एरिया अंडर द एडियाबैटिक कर्व इज लीस्ट, सो मैक्सिमम एरिया अंडर आइसोबारिक प्रोसेस होगा. सो इसीलिए वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस इज मैक्सिमम एंड वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज मिनिमम. और जो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन है दैट लाइज बिटवीन दिस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, दैट इज बिटवीन द आइसोबारिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस. फॉर सेम एक्सप्रेशन इन वॉल्यूम, for same compression in volume, work done by the gas is maximum in adiabatic. अब compression वॉल्यूम का जो compression होता है आइसोबारिक में सबसे लीस्ट एरिया होगा, इसके नीचे only this area would be there. So आइसोबारिक में लीस्ट हो गया वर्क डन, आइसोथर्मल में उससे ज्यादा और एडियाबेटिक में सबसे ज्यादा वर्क डन होगा. कब, है ना, फॉर सम कंप्रेशन इन वॉल्यूम, एक्सपेंशन इन वॉल्यूम में ये हमारा होगा कंडीशन, और जो कंप्रेशन इन वॉल्यूम में ये हमारा वैल्यू होगा. नॉट टू आइसोथर्मल कर्व्स आर गिवन फॉर गिवन मास नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना. दो आइसोथर्मल कर्व कभी भी मीट नहीं करेगा. क्यों? अगर मीट कर गया तो टेम्परेचर जो है, ठीक है, सो ये भी आइसोथर्मल कर्व है, इसका टेम्परेचर सेम होगा, है ना. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो आइसोथर्मल कर्व विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. नाउ फॉर अ गिवन मास isothermal curve and adiabatic curve intersect each other, है ना. आइसोथर्मल कर्व और एडियाबेटिक कर्व इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि दोनों का स्लोप अलग अलग है. At A, slope of isothermal curve is equal to gamma times slope of adiabatic curve. So slope of isothermal curve is minus P by V and slope of adiabatic curve is minus gamma P by V. So slope of isothermal curve is gamma times slope of the adiabatic curve. उल्टा लिखा हुआ है. स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व जो है
स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज ग्रेटर, तो स्लोप ऑफ ये यहाँ पे चेंज कर लेना। अब ये जैसे पीवी ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे फर्स्ट वाला ये जो हो गया ये आइसोबारिक हो गया और ये फोर्थ आइसोकोरिक हो गया। जिसका स्लोप ज्यादा है वो हो गया हमारा, ठीक है, थर्ड वाला एडियाबैटिक हो गया क्योंकि स्लोप यहाँ पे ज्यादा है, और आइसोथर्मल वाले का स्लोप थोड़ा कम होगा। नाउ पीटी ग्राफ, अगर प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पे आइसोथर्मल का ये 2 वाला तो आइसोथर्मल हो गया और 1 वाला जो आइसोबारिक हो गया, और ये जो है, और सिमिलरली ये जो थर्ड वाला एडियाबेटिक हो गया, और फोर्थ वाला जो है आइसोकोरिक है, ठीक है। So pressure is directly proportional to temperature, happens in isocoric process only जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है। ना ये वीटी ग्राफ अगर हम लोग देखें, वीटी ग्राफ में फर्स्ट वाला ये वॉल्यूम कांस्टेंट, थर्ड वाले में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो फर्स्ट आइसोकोरिक, थर्ड जो है आइसोथर्मल। सेकंड वाला जो है वीटी ग्राफ है ना, सो हियर V इंटू टी इज कांस्टेंट, V इंटू टी कांस्टेंट है, सेकंड वाला एडियाबैटिक हो गया, और फोर्थ वाला यहाँ पे V is directly proportional to T, so V is proportional to T in isobaric process. ये सारे ग्राफ हैं ध्यान रखने के लिए। अब 24th वाला, an ideal gas is taken through a cycle, यहाँ A से स्टार्ट कर रहे हैं, A to B, B to C, C to A, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और वापस फर्स्ट। So an ideal gas is taken through a cycle A to B, B to C and C to A. As shown in figure, if the net heat supplied to the gas, अच्छा यहाँ पे देखो ये प्रेशर कांस्टेंट है, A to B में प्रेशर कांस्टेंट है, तो A से B जो है हमारा प्रोसेस आइसोबारिक हो गया। उसके बाद B to C में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो B to C जो है हमारा प्रोसेस ये आइसोकोरिक हो गया, ठीक है। उसके बाद C to A में बेसिकली V और P, ठीक है, तो V इंटू पी बेसिकली कांस्टेंट होता है। अब ये कह रहा है इफ द नेट हीट सप्लाइड टू द गैस इन द साइकिल इज 5 जूल, सो डी क्यू इज इक्वल टू 5 जूल, और द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस सी टू ए हम लोग को निकालना है। सो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, सो वी हैव डी क्यू का वैल्यू 5 जूल दे रखा है, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस है, डी यू जो है हमारा 0 हो जाएगा, डी डब्ल्यू, ठीक है। So that means dW is equal to work done from A to B
वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, वर्क डन फ्रॉम सी टू ए। अब जब प्रेशर कांस्टेंट होगा पी डी वी, हम लोग ए टू बी का, वॉल्यूम कांस्टेंट है बी टू सी में, जीरो हो जाता है वर्क डन। सो नेट वर्क डन 5 इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी is P times V2 minus V1. B to C, वॉल्यूम कांस्टेंट 0, C to A हमें निकालना है। 5, प्रेशर P कांस्टेंट मतलब 10 हो गया, और V2 minus V1 हो गया, so this is 2 minus 1 plus C to A हम लोग को वर्क डन निकालना है। तो 5 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 माइनस 1, 10 हो गया, प्लस ऑफ वर्क डन C to A. So this means work done C to A is equal to 5 minus 10 minus 10 joules. सर Yes. सर वो 5 माइनस 10 माइनस 5 नहीं होना चाहिए? हाँ माइनस, एक मिनट, हाँ -5 होना चाहिए। एक मिनट, मैंने क्या किया है, -5 ही होगा। 5 minus 10 -5, -10 नहीं होगा, -5। ठीक, एक मिनट।
सॉरी कुछ नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड इज कैरीड अराउंड अ क्लोज्ड साइकिल। कार्बन मोनोऑक्साइड इज कैरीड अराउंड अ क्लोज साइकिल ABCA। तो हम लोग ए से स्टार्ट करके ABC और वापस ए पे आ गए। इन विच BC इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये हमारा BC जो है, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एज शोन इन द फिगर। PV डायग्राम है तो ये देखो CA वाला जो होगा ये आइसोबारिक हो जाएगा और जो AB वाला है ये आइसोकोरिक हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, राइट। The gas absorbs 7,000 joules of heat as its, so dq is equal to, it absorbs 7,000 joule, so dq हम लोग यहाँ पे 7,000 joules लिखते हैं। So 7,000 joules of heat as its temperature increases from 300 Kelvin to 1,000 Kelvin, ठीक है। So 300 Kelvin से 1,000 Kelvin तक जब temperature in going from A to B, so A से B तक जब हम जाते हैं तो यहाँ पे temperature 300 Kelvin है, यहाँ पे B पे जो temperature है 1,000 Kelvin है, ठीक है। और जो heat यहाँ पे absorb कर रहा है dq, this is equal to 7,000 joules के बारे में बात करें। Now the quantity of heat rejected by the gas during the process CA हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को जो heat rejected है यहाँ CA में वो निकालना है। So dq ये A to B है, हमें dq C to A निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। So अब देखो ये टेम्परेचर B और C पे टेम्परेचर सेम होगा। टेम्परेचर एक एक करके करते हैं। टेम्परेचर एट A इज इक्वल टू 300 केल्विन, टेम्परेचर एट B इज इक्वल टू 1000 केल्विन विच इज सेम एज टेम्परेचर एट C, क्योंकि BC जो है एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर चेंज नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ठीक है। अब हीट एनर्जी, अब आइसोकोरिक प्रोसेस है, राइट। इन आइसोकोरिक प्रोसेस तो अगर हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस पे पहले आए, राइट, इन आइसोकोरिक प्रोसेस A to B, यहाँ पे dw0 होता है तो dq इज इक्वल टू लेट्स से du प्लस dw है, बिकॉज वर्क डन यहाँ पे 0 है क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है। dq इज इक्वल टू du हो गया, ठीक है। उसके बाद dq इज इक्वल टू du। ए बी प्रोसेस में dq क्या है, 7,000 जूल्स है। सो dq in AB process is equal to du in AB process is equal to 7,000 joules हो गया। ना हमें पता है du is equal to NCV dt होता है, राइट। सो du हम लोग को पता है 7,000 है, इज इक्वल टू n इंटू कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO हो गया, डाई एटमिक गैस है, तो यहाँ पे
CO के लिए बिकॉज दिस इज डायएटमिक गैस, तो हमारा यहाँ पे CV का वैल्यू 5/2R हो गया. सो N इंटू 5/2R इंटू चेंज इन टेम्परेचर अगर हम लोग देखते हैं 1000 माइनस 300 ये हो गया. सो 7000 इज इक्वल टू N into 5/2R into 700, 10 times 20/5 4. NR is equal to 4 हो गया और N is equal to 4 divided by 8.314. 4 divided by 8.31, 0.48 नंबर ऑफ मोल्स निकल गया हम लोग का. ठीक है, अब हम लोग पाथ CA पे आते हैं. C to A वाला जो पाथ है आइसोकोरिक प्रोसेस, यहाँ पे सॉरी आइसोबारिक प्रोसेस. तो हियर dq from C to A is equal to du from C to A plus dw from C to A. ठीक है. Now अब देखो ये जो टोटल du है साइक्लिक प्रोसेस में, नेट du इज इक्वल टू 0. इन साइक्लिक प्रोसेस नेट du इज 0, मतलब du from A to B, du from B to C and du from C to A is equal to 0. अब देखो ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है. आइसोथर्मल प्रोसेस में तो du हमारा ऐसे भी 0 होगा. सो दिस एनीवेज इज इक्वल टू 0 इन आइसोथर्मल प्रोसेस. सो du from A to B plus of du from C to A is equal to 0. So we'll get du from C to A is minus of du from A to B. Du from A to B is 7000 joule. So minus of 7000 joules हो गया. इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं. सो हमारा dq C to A is equal to du from C to A is minus 7000. अच्छा, अभी पहले ये वर्क डन भी निकाल लेते हैं. C to A, dw from C to A, वर्क डन from C to A, प्रेशर कांस्टेंट है, इंटू dv कर लेंगे P1 इंटू V2 माइनस V1. ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी. सो V1 माइनस V2 हो जाएगा. सो P1 V1 माइनस V2. सो दिस इज NR T1 माइनस NR T2. NR का वैल्यू ऑलरेडी 4 हम लोग को पता है. 4 टाइम्स T1 माइनस T2 300 है और ये 1000 है. 300 माइनस 1000. So this is minus 700 into 4 minus 2800 हो जाएगा. ठीक है, ये NR is equal to 4 यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो अब हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं dq from C to A is equal to du from C to A, that is minus 7000 joules plus minus 2800 joule. So this will be minus of 9800 joule. Is it clear?
क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग यहीं पे रुकेंगे. नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. विल स्टार्ट इट इन द नेक्स्ट क्लास नाउ. ठीक है, मेल्टिंग प्रोसेस और ये बॉइलिंग प्रोसेस वाला पोर्शन रह गया है थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हीट इंजन और जो कार्नट साइकिल और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा है, रेफ्रिजरेटर वगैरह. तो हम लोग मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में विल बी एबल टू फिनिश दिस एंड स्टार्ट काइनेटिक थ्योरी आल्सो. ठीक है, ठीक है बच्चों, विल स्टॉप हियर, है ना. बाय एंड टेक केयर एवरीवन. Bye, sir. Thank you.